Assalamualaikum. Welcome to your fourth lab of VLSI design, and I will revisit the layout design and simulation of the exclusive OR gate for you because there were some problems that weren't addressed in the previous demonstrations. So I will try to address all the problems that you've already discussed with me. So I will try to redraw the stick diagram of the exclusive OR gate, and according to that stick diagram you're supposed to draw its microvent layout, and then you will simulate it. So let's start this. Now the first thing is that for an exclusive OR gate you need to find out the equation that you need to implement first. F is, let's suppose, the equation output that you need to simulate for an exclusive OR gate, and its equation is A complement dot B plus A dot B complement. Now for the CMOS design, we already know that we need to take out the whole complement or the whole bar over the equation so that it can be implemented correctly. So this way we will have, for CMOS, F will become A dot B plus A complement dot B complement whole bar, right? So this is the equation that you are going to implement, and whole bar will appear automatically over the CMOS design. So let's see that how we are going to implement it. I've already gone through that why do we need to implement this equation previously, so I am assuming that all of you know this already. So let's draw this CMOS design. For this we have, for dot operation, we will have PMOSes connected in parallel, and NMOSes will be connected in series, right? And for plus operation, PMOSes will be connected in series and NMOSes will be connected in parallel, right? So let's keep this thing in mind and let's draw a CMOS design of this equation. A dot B plus A complement dot B complement, right? So we have VDD over here in the pull up network, right? And it will be connected directly to A dot B, right? So A dot B, we are starting the equation from the left hand side. आप बेशक इसको they are symmetric in nature, so आप बेशक इसको opposite तरफ से भी implement कर सकते हैं, it doesn't make any difference. So हम A dot B लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो A सबसे पहले डॉट ऑपरेशन आ रहा है, सो वी फॉर पुल अप नेटवर्क्स वी नीड टू हैव PMOSes, so all the PMOS, both the PMOSes will be connected in parallel with each other, right? This is A and this is B, right? And after that we have a plus operation, which means that there should be the next term should be in series with the first term. फर्स्ट टर्म हमने बना ली, अब हम सेकंड टर्म बना रहे हैं, तो सेकंड टर्म के अंदर अगेन टू PMOSes है जिनके दरमियान में टू डॉट ऑपरेशन हो रहा है, A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट. तो हम उन दोनों को भी, A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट को भी हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, राइट? तो अब हम आते हैं जी लास्ट में. मैं यहाँ इक्वेशन दोबारा लिख देती हूँ. दिस इज़ गोइंग टू बी F equals A dot B plus A bar A complement B complement whole bar, राइट? तो अब हमारे पास ये पुल अप नेटवर्क बन गया. अब हमने पुल डाउन नेटवर्क बनाना है, तो पुल डाउन नेटवर्क के लिए NMOSes को हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे. तो वी ऑलरेडी नो दैट PMOSes के कॉम्प्लीमेंट्री हम CMOS के अंदर एक हर
PMOS के अक्रॉस एक कॉम्प्लीमेंट्री NMOS लाजमी होगा। तो हम अपना पुल डाउन नेटवर्क स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर पुल डाउन नेटवर्क बनेगा। तो हमारे पास सबसे पहले A और B जो है इनके दरमियान डॉट ऑपरेशन है। तो इन दोनों को हमने सीरीज़ में रखना है एंड दिस इज़ A एंड दिस इज़ B, राइट। एंड अगेन हमारे पास ये इक्वेशन है A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों भी सीरीज़ में आएंगे, A बार B बार, राइट। और उसके बाद हम इनको माइनस VSS या ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे, राइट। और हम आउटपुट जो है जो पुल अप नेटवर्क, दिस इज़ योर पुल डाउन नेटवर्क, और पुल अप नेटवर्क और पुल डाउन नेटवर्क के दरमियान में जो हमारे पास कनेक्शन है वहाँ से हम आउटपुट एक्सट्रैक्ट करते हैं विच इज़ F, राइट। तो अब हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमने इनको थोड़ा सा उनकी थोड़ी सी लेबलिंग करनी है। दिस इज़ योर P1, PMOS 1, PMOS 2, PMOS 3, PMOS 4, NMOS 1 एंड अब मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रही हूँ कि PMOS 1 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए NMOS 1। तो PMOS 1 के साथ A कनेक्टेड है, तो जहाँ पर A कनेक्टेड होगा इन द पुल डाउन नेटवर्क दैट विल बी योर NMOS 1। तो दिस इज़ योर NMOS 1 जहाँ पर A कनेक्टेड है। अब B हमारे पास NMOS में कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पर। तो दिस शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू PMOS 2, दिस शुड बी NMOS 2, राइट। और अब A बार कहाँ पर है, PMOS 3 के साथ। तो NMOS 3 आपका ये बन जाएगा जहाँ पर आपके पास A बार आ रहा है, राइट। और NMOS 4 आ जाएगा यहाँ पर जहाँ पर हमने B बार को कनेक्ट किया, राइट। तो अब हम इनकी सोर्सेज और ड्रेन्स को भी हम लेबल कर लें ताकि हमें आगे आसानी रहे। दिस इज़ सोर्स, दिस इज़ ड्रेन, सोर्स ड्रेन, सोर्स ड्रेन, सोर्स और ड्रेन, राइट। और यहाँ पर ड्रेन सोर्स, ड्रेन सोर्स, ड्रेन सोर्स, ड्रेन सोर्स। वी ऑलरेडी नो दिस दैट NMOSes के अंदर सोर्सेस जो है वो कनेक्ट होती हैं ग्राउंड के साथ और ड्रेन्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं हाई पोटेंशियल के साथ, राइट। तो अब हम देखते हैं कि इसको हमने इन द फॉर्म ऑफ स्टिक डायग्राम किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो स्टिक डायग्राम के लिए वी ऑलरेडी नो दैट हमें क्या चाहिए। सबसे पहले P प्लस डिफ्यूजन चाहिए। P प्लस डिफ्यूजन के लिए हमने येलो लाइन ड्रॉ की है। अब जो इशू लास्ट टाइम एड्रेस नहीं हो सका था वो ये था कि देयर वाज वन मिस्टेक, वन वेरी ग्रेव मिस्टेक जो कि अभी एड्रेस हो जाएगी। मैंने अभी क्या किया है कि PMOS 1, PMOS 2 और PMOS 3 और PMOS 4 इन दोनों के लिए दो अलग अलग N प्लस डिफ्यूजन्स बनाई हैं। इनको आपस में कनेक्ट क्यों नहीं किया, बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर हियर, क्योंकि इन दोनों का एक लूप क्लोज होने के बाद दूसरा लूप इन सीरीज विद द प्रीवियस लूप है। दैट्स वाई हमें इन दोनों के लिए जो N प्लस डिफ्यूजन है वो अलग अलग बनानी है, क्योंकि इस N डिफ्यूजन को अगर आप PMOS 2 को अगर आप PMOS 3 के साथ कनेक्ट कर देंगे तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस when you try to look at the same circuit, CMOS circuit के अंदर हम देखते हैं तो PMOS 2 is not directly connected to PMOS 3 और PMOS 4, तो there is a parallel connection between them। तो उसी को avoid करने के लिए हमें externally इनको connect करना पड़ेगा, because we need to make sure that which point is connected to which set। तो अब हम आ रहे हैं next NMOSes के अंदर, राइट। तो NMOS के लिए भी हम एग्जैक्टली
तो अलग अलग n सबस्ट्रेट n डिफ्यूजन बनाएंगे, राइट। और उसके बाद हमें फर्स्ट 2 PMOSes PMOS 1 और PMOS 2 के लिए हमने एक पॉली सिलिकॉन यूज़ किया, 2 पॉली सिलिकॉन्स यूज़ किए, राइट। तो 4 पॉली पेयर्स हैं हमारे पास PMOSes और NMOSes के। तो दिस मीन्स कि हमारे पास 4 ही पॉली सिलिकॉन्स आएंगे, 2 फर्स्ट 2 के लिए आएंगे, फर्स्ट पर लगेंगे और 2 हम सेकंड पर लगाएंगे, राइट। तो लेट्स ट्राई टू लेबल इट। और हम लेबल किस तरह से कर रहे हैं, ये PMOSes और NMOSes के अंदर जो सोर्स, ड्रेन और गेट का जो डिज़ाइन है, दे आर सिमेट्रिकल इन नेचर, सो हम लेबलिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू लेबल देम एज ड्रेन, सोर्स या सोर्स ड्रेन, सो और इसको हम ड्रेन ही कह लेते हैं, ड्रेन सोर्स, बिकॉज हमारे पास PMOS 1 और 2 के अंदर ड्रेन्स जो हैं वो आपस में शॉर्टेड हैं, तो हम एक कनेक्शन को हम अवॉइड कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर भी हम सेकंड में भी इसी तरह करेंगे, सोर्स ड्रेन ड्रेन सोर्स, राइट। और NMOSes के अंदर NMOS 1 और NMOS 2 और NMOS 3 और 4, इनके दरमियान हम कनेक्शन देख लेते हैं। तो वी कैन राइट इट एज ड्रेन सोर्स, जो नॉर्मल कनेक्शन बन रहे हैं हम उसी तरह ही चलते हैं, ड्रेन सोर्स, राइट। तो लेट्स सी, इसको हम फर्दर मेंशन कर लेते हैं। दिस इज P1 P2 P3 एंड P4, दिस इज N1 N2 N3 N4, राइट। तो अब हम let's try to connect the correct sources and drains as per the schematic diagram. तो schematic diagram में PMOS 1 और PMOS 2 इन दोनों के sources जो हैं वो आपस में shorted हैं। तो हम क्या करते हैं, PMOS 1 और 2 इन दोनों के sources को using a contact point we will short it. Let's try to use it a thicker line, right. और PMOS 1 और PMOS 2 के ड्रेन्स भी आपस में शॉर्टेड है, राइट। तो वो ऑलरेडी विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सटेंशन ऑफ द N+ सबस्ट्रेट या N+ डिफ्यूजन जो है, हमने इसको ऑलरेडी शॉर्ट किया हुआ है, राइट। तो अब हम PMOS 3 और 4 के भी कनेक्शंस कर लेते हैं। PMOS 3 और 4 के अंदर दोनों की सोर्सेज जो हैं वो आपस में शॉर्टेड हैं, source and source are shorted with each other, right, and drains are shorted with each other. अब एक और कनेक्शन है यहाँ पर कि इन दोनों की जो ड्रेन्स को हमने शॉर्ट किया हुआ है और इन दोनों की सोर्सेज को जो हमने शॉर्ट किया हुआ है, दे आर ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर। तो सोर्सेज यहाँ पर आ रहा है कॉन्टेक्ट पॉइंट ड्रेन्स का, और दिस इज द कॉन्टेक्ट पॉइंट फॉर सोर्सेज ऑफ P3 एंड P4। तो हमने यहाँ से एक वायर ली और इसको इसके साथ कनेक्ट कर लिया, राइट, यूजिंग अ मेटल वायर हमने एक यूज़ की है। अब हमारे पास P1 P2 P3 एंड P4 के कनेक्शंस कंप्लीट हो गए। नाउ आफ्टर दैट अब हम आते हैं N डिफ्यूजन के ऊपर। N डिफ्यूजन के अंदर N1 और N3 इन दोनों की ड्रेन्स आपस में शॉर्टेड हैं। ये आपके पास N1 है, ये N3 है, इन दोनों की ड्रेन्स आपस में शॉर्टेड हैं। वी हैव कनेक्टेड देम बोथ। और N1 का जो सोर्स है दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद और शॉर्टेड विद द ड्रेन ऑफ N2, जो कि ऑलरेडी हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसको अलग से एक्सटर्नली शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं N3 और N4 पे। N3 और N4 के अंदर ड्रेन तो हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर दी है करेक्ट पॉइंट के ऊपर, और इसका जो सोर्स N3 का जो सोर्स है दैट इज़ कनेक्टेड टू
शॉर्टेड विद द ड्रेन ऑफ N4 जो कि ऑलरेडी हो रहा है, तो हमें एक्सटर्नली कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ अनदर थिंग इज़ दैट N2 और N4 इन दोनों का जो सोर्स है दे आर शॉर्टेड विद ईच अदर. ये सोर्स है इसका और ये इसका सोर्स है, इन दोनों को हमने एक्सटर्नली शॉर्ट करना है, राइट. एंड हमने उसके बाद यहाँ पर VSS अप्लाई करना है और VDD भी अप्लाई करना है. तो हम VDD भी यहाँ अप्लाई कर देते हैं. दिस इज़ VDD. VDD हम कहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, जो हमने सोर्सेस शॉर्ट किए हैं यहाँ पर, और ये हमने ग्राउंड बना दिया यहाँ पे VSS. दिस इज़ शॉर्टेड टू द सोर्सेस, ये आपने कनेक्ट कर दिए शॉर्टेड. तो प्रीवियसली क्या हो रहा था कि अब अगर मैंने यहाँ पर इसको कंप्लीट किया होता तो N2 की सोर्स वाज बीइंग कनेक्टेड विद द ड्रेन ऑफ N3, जो कि यहाँ पर इसकी कोई लॉजिक नहीं बन रही. दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, सो दैट्स वाई दिस वाज क्रिएटिंग सम फॉल्स कनेक्शन. तो इसको हम अवॉइड करते हैं, राइट. सो दैट्स वाई मैंने इनको अलग कर लिया है. सो अब जो चीज़ रह गई वो रह गई आउटपुट. तो आउटपुट के लिए मुझे क्या करना है कि मैंने यहाँ पर इन दोनों की ड्रेन्स को शॉर्ट किया है और यहाँ पर इनकी भी ड्रेन्स को शॉर्ट किया है. राइट, ये इनको और इसको आपस में हमें कनेक्ट करना है. ये पॉइंट जो है ड्रेन का, ये वाला, सॉरी, इसको लेट्स यूज इट अ ब्लैक कॉन्टैक्ट. P3 और P4 का जो ड्रेन है that should be connected to the drains of both of these, N1 and N3, right. और यहाँ पर हम let's take F out from here, right. So this is going to be your output. अब inputs भी apply करके देख लेते हैं. Inputs should be A, B, राइट. तो P1 के साथ आ रहा है A और P1 के साथ ऑपोजिट में N1 आ रहा है. P2 के साथ आ रहा है B और इसी के साथ जो आपके पास N2 है वो हमने B के साथ अटैच किया हुआ है, राइट. और P3 के साथ आ रहा है A बार, राइट. एंड P4 के साथ आ रहा है B बार, राइट. तो आप इसको डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं और इन एनी केस आपके पास इसका आंसर ठीक आएगा. नाउ वन मोर थिंग कि आपके पास जो मुझे एक्चुअली बताना लास्ट टाइम, आई थिंक दैट वाज इम्पोर्टेंट थिंग, कि A बार और B बार आप किस तरह से अप्लाई करेंगे. I'm leaving this exercise up to you. I hope that you can implement it. Let's use this polysilicon and another polysilicon, another polysilicon and another polysilicon, right. तो अगर मैं अप्लाई करना चाह रही हूँ फर्स्ट polysilicon के ऊपर input A, so let's drop a clock over here and I name it as A, right. And I want to apply A bar over here, over this. So I will choose, मुझे A और A बार इकट्ठा ही अप्लाई करना है, otherwise it will make some confusion. So मैंने A बार अप्लाई किया. इसको अभी नाम देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्लॉक पे ही रहने देते हैं इसको. लास्ट क्लॉक पे क्लिक करेंगे हम तो इट विल अप्लाई द नेगेटिव ऑफ द प्रीवियस क्लॉक जो हमने अप्लाई की हुई है, दैट इज़ A. तो ये A बार ऑटोमेटिकली हो गया ना, असाइन इट. आफ्टर दैट अगर मुझे B अप्लाई करना है, B मुझे यहाँ अप्लाई करना है, तो आई नेम इट एज B एंड देन आई असाइन इट. एंड आफ्टर दैट मुझे B बार अप्लाई करना है तो मैं यहाँ अप्लाई करूँगी और इसको मैं जस्ट लास्ट क्लॉक पे क्लिक करती हूँ तो इट गिव्स negative of the previous input that I've applied, right. Assign. और भी तरीके हैं. अगर if I try to use 2 more polysilicons over here,
मोस्टली प्रैक्टिस यही है कि हम इनपुट्स जो है पॉलीसिलिकॉन्स पर अप्लाई करते हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल यूजिंग दिस. तो लेट्स नेम इट एज ए एंड गो टू पीसवाइज के अंदर हम सीक्वेंस जो है वो 1 0 1 0 1 0 1 0 दे देते हैं, लेट्स सपोज, एंड देन इंसर्ट इट. ओके, इंसर्ट के बाद ये आपको एक सीक्वेंस यहाँ पर जनरेट करके उसने अप्लाई कर दी है, असाइन, राइट. उसके बाद हम एक और क्लॉक यहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं, एंड आई वांट इट टू बी द नेगेटिव ऑफ द प्रीवियस इनपुट. प्रीवियस की जो सीक्वेंस थी वो 1 0 1 0 1 0 थी, तो आई नेम इट एज a bar and go to piecewise, and this time I'm going to use the inverted sequence 0 1 0 1 0 1 0, right, and then I insert it and assign. So that's another way of how you can apply the negative of the input. So I hope that all the questions that you have asked me previously have been addressed. If you have any further queries, then you can discuss with me. So I'm going to end this session. Allah Hafiz.